I took 6 attempts to clear the last 3 papers of CA final exams. आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मैनिफेस्टेशन डज इट वर्क, डज इट नॉट वर्क, ये लॉजिक के रेल में कैसे फिट हो रहा है? It is not the way it's been put out in the market कि सोचो, एफर्मेशन करो, विजुलाइज करो, कुछ भी नहीं होगा. हमारे 5 सेंसरी इनपुट से इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जो कि हम बेर ही नहीं कर पा रहे हैं. लॉट ऑफ इट इज नॉइज. तो जब इंसान को यही नहीं पता, हमें सिखाया ही नहीं गया कि हम कौन है, हम क्या चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत दूर की बात है ना. साइंटिफिक वे ऑफ यूजिंग मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे. Because we're not believing on our own journeys. And hence we are afraid, we are trying to fit in the picture, we are trying to follow the society. आपके ब्रेन को और आपकी बायोलॉजी को, आपके माइंड को, आपके सोल को, आपके बोन को ये अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ और इस वजह से वो उसको बहुत ही एलियन लगता है और इस वजह से वो आपको रोक रहा है कि सुन यार, तू कंफर्टेबल रह, जो कर रहा है कर. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ है और बहुत ही मैजिकल एपिसोड है. बट बिफोर यू वॉच दिस एपिसोड, I have a special announcement. We have started a free community for Meta Skills. Meta Skills क्या है, आप उस community में join करके आपको पता चलेगा. But in short, if you are lacking in growth professionally, you need these Meta Skills to climb up the ladder and become the best version of you. This community is completely free. This is just an initiative to make sure आप अपना extraordinary professional self realize कर सको. You can be rich, healthy, smart, and successful all combined. So please do join us. The link for this community is going to be in the description, and it would be a pleasure to work with you. Now coming to this episode. This episode is all about manifestation. And I know आप क्या बोलोगे. Manifestation is all woohoo. I too also started like this. And I'm going to tell you that in this, I have taken the responsibility of becoming a skeptic just like you. आपके जो भी क्वेश्चंस है इस एपिसोड में मैंने ऑलरेडी पूछ लिए हैं. एंड आफ्टर दैट द रियलाइजेशन आई गॉट वाज माइंड ब्लोइंग. सो आई वांट यू टू वॉच दिस एपिसोड. कीप ऑल योर क्वेश्चंस. वी आर गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड देन यू विल सी एट द एंड ऑफ इट द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. So please watch this special and magical episode today with none other than our personalized manifestation coach, Miss Agrika. And you will be blown away. Like always, click like, subscribe, and share this episode with as many people as possible who actually want to hear this. Thank you so much, and thank you always for watching Beyond Billables. Welcome to this special episode of Beyond Billables, or I would say magical episode of Beyond Billables. Thank you, Agrika, for joining us today. Thank you for having me. I know you are a personalized manifestation coach. So let's break this down पहले. आपकी journey, what is manifestation in short, अगर आप किसी को बताना चाहेंगे, someone who has no idea. And two, आपकी journey यहाँ पे कैसे आई? Okay. So answering your first question, आई थिंक एक डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए मैनिफेस्टिंग का तो ये एक एबिलिटी है एक इंसान की कि वो अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को, जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में तब्दील कर पाए. सो मैनिफेस्टिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कन्वर्ट हिज और हर ड्रीम्स इनटू 3D रियलिटी. दैट्स सिंपली मैनिफेस्टेशन. Now, how I did come here, थोड़ा सा लंबा आंसर रहेगा. Please बताइए. Again, a blessing in disguise, I would say, because 2015 is when I was, Rohan, about to complete my CA studies. But then universe had some other plans. और 2015 में मेरा CA कंप्लीट होने वाला था, बट देन मैं 16, 17, 18, 19 तक फेल होती गई. आई टुक 6 attempts टू क्लियर द लास्ट 3 पेपर्स ऑफ CA फाइनल एग्जाम्स. द लास्ट 3 पेपर्स. उसके पहले का सब कुछ चल रहा था बढ़िया. अगेन इफ पीपल आस्क मी कि पढ़ाई नहीं करती थी क्या हो गया, आई वॉज गोइंग थ्रू मल्टीपल थिंग्स. माई फर्स्ट ब्रेकअप हैपेंड, टू बी ऑनेस्ट, एंड सर्वाइकल इशू हो गया, मेरे फादर का थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, मल्टीपल थिंग्स, एंड हेंस आई वॉज नॉट एबल टू फोकस. बट देन बोलते ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है. आई यूज्ड टू सर्च फॉर मोटिवेशन, संदीप माहेश्वरी, दिस दैट, एंड एनी हाउ आई जस्ट बम्प्ड इनटू मैनिफेस्टेशन. तो मैं फॉरेन के कुछ कोचेस थे, बॉब प्रॉक्टर, इन लोगों को मैंने सुनना शुरू किया एंड इट क्लिक्ड. प्रोबेबली इट वाज ऑफ कोर्स मेड फॉर मी. सो इट क्लिक्ड कि यार ऐसा भी होता है. सो 2015 से 19 तक ऑल्दो आई वाज फेलिंग, बट देन डीप डाउन समवेयर आई वाज
आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स विच इज सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मेरा जो भी पास था, मैं फेथ लेकर के आ रही थी, मैं डर को ओवरकम कर रही थी, मैं अपने पास्ट को डिलीट करने की कोशिश कर रही थी. एंड देन 2020 आई नॉट जस्ट क्लियर्ड CA although after 6 attempts, but then वहाँ से the scale of my growth chart went really high. मैंने जॉब नहीं की, मुझे जॉब मिल नहीं रही थी, बट मैंने अपना फर्स्ट एडटेक वेंचर लॉन्च कर दिया था 2020 इटसेल्फ में, और उसको मैं मल्टीपल करोर्स तक लेकर गई 2022 तक. 22 में मैंने एक और अपना एडटेक वेंचर लॉन्च किया स्किल्स का, उसको भी हमने बहुत स्केल किया, एक टीम बनाई. सो या मैनिफेस्टेशन हैज़ बीन माई वे ऑफ लिविंग सिंस 2015 एंड इट्स 2025 नाउ. 2024 में मैंने इसको फिर अपना पैशन प्लस बिजनेस बना लिया, like my passion plus my career. So my journey started there. वाओ, ये आपने एक्चुअली कॉम्पैक्ट वे में सब कुछ बता दिया. तो यू आर अ CA राइट, बाय क्वालिफिकेशन. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्टली, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ CA, माई फादर इज ऑल्सो CA, इज दे आर पीपल ऑफ लॉजिक, फैक्ट्स एंड फिगर, ड्राई चीज, और पीपल वुड कॉल द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. Yeah. आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मैनिफेस्टेशन डज इट वर्क, डज इट नॉट वर्क, ये लॉजिक के रेल में कैसे फिट हो रहा है? Okay. सो क्वेश्चन करने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज अभी पॉप कल्चर में जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन को प्रमोट करते हैं कि सोचो हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन वो चीज़ है ही नहीं. इट्स ऑल कॉग्निटिव साइंस, मीनिंग. बस यहाँ पे रुकना चाहेंगे गाइस, खाली सोचने से चीज़ नहीं आएगी आपके सामने. ये फर्स्ट चीज़ हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, प्लीज़. श्योर. सो मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से प्रमोट ही किया जा रहा है अभी. इट इज़ नॉट द वे इट्स बीन पुट आउट इन द मार्केट की सोचो, एफर्मेशन करो, विजुलाइज करो, कुछ भी नहीं होगा. इट इज़ ऑल कॉग्निटिव साइंस. कॉग्निटिव साइंस मतलब क्या है? इट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट और टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ वे. फॉर एग्जाम्पल, कि आपका जो ब्रेन है वो एक कैमरा की तरह नहीं है जो कि रियलिटी को एज इट इज कैच कर रहा है. हम दोनों का ब्रेन एक सिनारियो को हमारे अजम्पशंस के हिसाब से परसीव कर रहा है. सो अगेन मैंने 2015 से स्टार्टिंग में तो एफर्मेशन वगैरह की बात की होगी, बट उसके बाद से मैंने इसकी साइंस ही पढ़ना शुरू कर दिया था. द न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, द NLP, द CBT, द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एंड हेंस इट मेक्स एंटायर सेंस. इट्स ऑल बायोलॉजी कि योर assumption is equal to your perception. What you perceive is how you behave, and that's your result. So that's manifestation, to be honest. तो आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे फॉर समवन हु हैज़ नो आइडिया ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड लेट्स से उनका 101 क्लास हो रही है, तो आपने टर्म्स यूज़ किए, न्यूरोसाइंस, CBT, कॉग्निटिव समथिंग भी आपने एक टर्म यूज़ किया था. तो आप वेरी ब्रीफली बता पाएंगे कॉन्सेप्ट्स है क्या फॉर समवन हु डजंट अंडरस्टैंड? ठीक है. कॉन्सेप्ट से पहले मैं एक एग्जाम्पल से करती हूँ. प्लीज़. हम सभी ना ओवर स्टिमुलेटेड हैं इस वक्त, कि हम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, वी ह्यूमंस, हमें हमारे 5 सेंसरी इनपुट से इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जो कि हम बेर ही नहीं कर पा रहे हैं. लॉट ऑफ इट इज नॉइज. आप अग्री करोगे? कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे काबू में है नहीं. बिल्कुल. अभी क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल इंसान जिसने कोई एक पर्टिकुलर गोल प्राइम नहीं कर रखा है, एक शब्द है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. हमारे ब्रेन से स्टेम अराउजल नेटवर्क में, ज़्यादा बायो मुझे नहीं पता है, सिर्फ इतना ही पता है कि ब्रेन स्टेम अराउजल नेटवर्क में एक पार्ट होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि आपको उस चीज़ को लेकर के अलर्ट या फिर अवेयर करा है जो आप देखना चाहते हो. फॉर इंस्टेंस, आपने एक गाड़ी का मॉडल खरीदा या फिर आपने एक मोबाइल का मॉडल खरीदा, अब आप देखोगे आपको वही दिखेगा हर जगह. या फिर आप सोच के जाओ कि मुझे बहुत क्लासिक एग्जांपल है मैनिफेस्टेशन में, मुझे लाल गाड़ी देखनी है या फिर XYZ गोल्डन गाड़ी, आपको वो ही दिखना शुरू होगा. आपने बोला था अभी कि एंजल नंबर्स, तो इसका कुछ लेना देना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी से नहीं है. आपके माइंड ने पकड़ लिया कि यार एंजल नंबर, अब आपको बार बार एंजल नंबर दिखेंगे. वाई? बिकॉज आप जो चाहते हो, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको वो ही ढूंढवा रहा है. इस तरीके से हम बने हुए हैं. नाउ कमिंग बैक, एक नॉर्मल इंसान जिसने अपना, एक एवरेज आदमी जिसने कोई गोल नहीं बना रखा है कि यार 1 महीने बाद का मेरा ये गोल है, वो ओवर स्टिमुलेटेड है, वो जिंदगी कैसे भी जी रहा है. सो ही इज नॉट, हिज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग. ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. वर्सेस अ पर्सन, पीपल लाइक अस, जो कि काम भी कर रहे हैं, बट हमने अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया कि भाई मुझे ना 1 महीने में ये चीज़ अचीव करनी है, या फिर कल तक मुझे ये देखना है, 1 हफ्ते के एंड तक मुझे ये करना है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो आपको ढूंढवाना शुरू कर देता है. सो ये बेसिक्स है मैनिफेस्टेशन का. पीपल विल नॉट बी एबल टू कंटेन दिस, क्योंकि उनको आदत हो गई है एफर्मेशन की, उनको आदत हो गई है विजुअलाइजेशन की. वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. ये थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट एक बार समझ लिया ना तो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वी आर सो मैजिकल एज ह्यूमन बींग्स. हमारे अंदर ऐसी फैकल्टीज है कि हम जो एनविजन कर सकते हैं ना, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं यूजिंग दिस न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई वुड से.
एक्चुअली जैसे मैं आपको पॉडकास्ट से पहले ही पूछने वाला था, आई वॉन्ट टू प्ले द रोल ऑफ अ स्केप्टिक, बट नॉट अ स्केप्टिक जो रियलिटी को बरी करे, बट यूजिंग आवर डिस्कशन एंड डायलॉग एक्चुअल रियलिटी जो आए. एंड वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपने आई थिंक ऑलरेडी आंसर कर दिया कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन. तो आई वांट टू आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन. इफ दिस इज सो साइंटिफिक, if we are so magical and miraculous as human beings, why doesn't manifestation work for so many people? Why it doesn't work for Why some it doesn't people? work? Yeah, because again, it's so unfortunate that in our education system we have been never taught about this. हमें सब पढ़ाया गया साइन कॉस थीटा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, लेकिन 12वीं कक्षा के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी एक इंसान को ये नहीं पता होता कि वो कौन है. तो जब इंसान को यही नहीं पता, हमें सिखाया ही नहीं गया कि हम कौन है, हम क्या चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत दूर की बात है ना. मैनिफेस्टेशन की शुरुआत, कहीं तक पहुंचने की शुरुआत खुद से होती है ना. और बिल्कुल. ज़्यादातर हम सभी खोए हुए हैं. हमें नहीं पता कि हम कौन है. हमें ये पता है कि हमारा इंस्टाग्राम के फॉलोइंग क्या है, सोशल मीडिया क्या है, बट हु आर वी एज अ पर्सन. आप अग्री करोगे इस बात से कि हम एक सोशल स्क्रिप्ट तो फॉलो कर रहे हैं. 12th तक भाई मुझे तो बोला गया था कि 12th तक ये नंबर लेकर गया, मैंने वो कोशिश करी. 12th के बाद ये सोशल स्क्रिप्ट फॉलो करो कि कुछ सीए करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो, मैं वो करती गई. मैंने खुद से कभी सवाल ही नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या स्टडी करनी है, ये हम क्यों कर रहे हैं. एक एज तक आप शादी करिए, बच्चे करिए, ये करिए. सो सोशल स्क्रिप्ट्स को हम फॉलो करते करते खुद से ही खो चुके हैं. सो मैनिफेस्टेशन किसी के लिए कैसे काम करेगा जब तक उसको यही नहीं पता कि वो कौन है और उसे कहाँ तक जाना है. यूजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक सोशल स्क्रिप्ट के फोमो को ही फॉलो कर रहे हैं कि ओके जॉब, okay business, now 1 lakh, now 10 lakh, then marriage, then this. These are not even our goals. If we tend to understand ourselves, which a lot of people are doing nowadays, they tend to know कि हमें चाहिए क्या. So manifestation is nothing but the bridge between who you are and what you want. But unfortunately, lot of us, they are unaware, they don't have clue of who we are. क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अब मैं फॉलो कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ. अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट मैं एक सोशल स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही थी कि 12th, then CA, then job, then this. हम सब ने किया है कहीं ना कहीं. हम सब कर रहे हैं ज़्यादातर. तो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड समवन हु इज लिसनिंग टू अस, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम सोशल स्क्रिप्ट फॉलो करते रहेंगे, जो भी हमारी सोशल कंडीशनिंग है, हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे. एंड मैनिफेस्टेशन और द साइंटिफिक वे ऑफ यूजिंग मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे, राइट? एग्जैक्टली. इसको अदर वे राउंड, जब तक हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हमारे अंदर गट्स नहीं आएंगे और हम सोशल स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहेंगे. वी आर डूइंग दैट बिकॉज ऑफ द फोमो, बिकॉज वी आर नॉट बिलीविंग on our own journeys, and hence we are afraid, we are trying to fit in the picture, we are trying to follow the society. That's the thing. तो हम अपने आप को कैसे जाने? Like how did you discover yourself? Again, it's not that simple. I think it's again destruction of the old, and it's very painful. It keeps happening with me, and it's happened with me multiple times. And लोगों के साथ होता है. Say losing a loved one, again a person breaks. हमारी एक ओल्ड आइडेंटिटी पूरी डिस्ट्रैक्ट होती है. उस टाइम हमें कोई पीछे से धक्का देता है कि यार व्हाट आर वी डूइंग. से फेलियर, कि इंसान को मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़ चाहिए, वो फेल हुआ है, वो टूट जाता है. सो द आंसर इज ब्रेक से ही ब्रेक थ्रू होता है. हम अगेन स्पिरिचुअलिटी भी इसमें है कि हम आए हैं यहाँ पे खोने के लिए. हम धीमे धीमे, सो जर्नी क्या है दुनिया की, मैनिफेस्टेशन की, इस पूरी जर्नी इज टू फाइंड आवरसेल्व्स, टू कम बैक टू द होम. एंड व्हाट इज द होम? होम इज आवरसेल्फ. So we'll have to go through all the challenges, the heartbreaks, the losing of loved ones, losses. क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हम ब्रेक हो जाएंगे अंदर तक, और हमारी जो ओल्ड आइडेंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. यिन यान, अगेन जापानीज में केंशो सतोरी मोमेंट्स विच सेज कि एक इंसान को अपना ट्रू सेल्फ तब समझ में आएगा जब उसकी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्ट मोमेंट्स प्लांट किए जाएंगे. तभी आप देखते होगे ब्रेकअप के बाद अचानक से लोग कुछ अलग ही कर बैठे. एक लॉस ऑफ लव्ड वन हुआ किसी फैमिली का, फैमिली मेम्बर का, या फिर कुछ भी और पेनफुल हुआ, उसके बाद इंसान के अंदर जब धक्का लगता है वो खुद के साथ रुकता है और फिर उसके अंदर गट्स आते हैं कि नहीं यार, मैं इसमें से खुद को निकालूंगा. द सेम हैपेंड विद मी. It happened multiple times. और क्या होता है ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में, रोहन, आई हैव रेड अबाउट दिस, कि ये जो फेल्ड मिसाइल्स हैं जिसको बोलते हैं, ये प्लेस की जाती हैं. क्या बोलते हैं इनको? फेल्ड? सो अगेन एन एनालॉजी की
मिसाइल्स जब लॉन्च होंगी, Failed सक्सेसफुल missiles होंगी, है, तो right, फेल्ड right, मिसाइल्स yeah, भी yeah, होंगी, उसके correct, बाद correct. लॉन्च होगी. तो सिमिलरली हम लोगों की ज़िंदगी में फेल्ड मिसाइल यूनिवर्स ने प्लान कर रखे हैं बेसिस आवर कर्मा, आवर एस्ट्रोलॉजी चार्ट. मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट जितनी जल्दी आ जाती है ना, मेरे एक मेंटर ने कहा था, जितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में ये फेल्ड मिसाइल्स आ जाएंगी, आपके अंदर उतने गट्स आ जाएंगे. मेरे तो बहुत हुए. Again, similar. You see, I was just 19 or 20 when everything started happening. I was clueless. The breakup happened. I started failing 6 times. I couldn't control or contain myself. Cervical hit me. My father's financial loss. We had no money at one point in time. I was in Delhi, in Lakshmi Nagar, doing CA, trying to figure out. There was nobody around. And then ये सारी चीज़ें एक साथ होने लग गई. I broke to the lowest point. पीपल माई एज, मुझसे भी छोटे छोटे लोग जो थे वो आगे निकल रहे थे, शादी हो रही थी लोगों की, 1-2 लाख की जॉब मिल रही थी. मैं 4 साल तक वहीं थी. 2015, 16, 17, 18, 19, आप समझ रहे हो, मैं रॉक बॉटम हिट कर चुकी थी, एक्स एक्सेस से भी नेगेटिव जा चुकी थी. तो इतना ब्रेक हो गया, उसके बाद इंसान के पास कुछ बचता नहीं है. सो अगेन कमिंग बैक टू योर question, how to find self, one of the ways is, as far as I understand, is to break the old self. और ब्रेकिंग इतनी आसान नहीं होती है. हम चिल मार के बैठे हैं यहाँ पे, सब कुछ सही चल रहा है, हम नहीं बोलेंगे कि चल यूनिवर्स हमें ब्रेक कर. एवरीथिंग विल बी फाइन, विल बी एंजॉइंग लाइफ. बट देन थ्रू हार्ड मोमेंट्स इज व्हेन यू नो वी ब्रेक आवर ओल्ड सेल्स. बोलते हैं ना, जैसे ग्लास है, ग्लास है, कांच टूट जाएगा तो उसके अंदर की जो लाइट है वो बाहर निकलती है. सेम हैपेंस विद अस ह्यूमंस, कि ब्रेक्स होते हैं, उससे ब्रेक थ्रू होता है. सो वन ऑफ द वेज इज to find ourselves is to delete the past, and one of the ways to delete the past is this, but I'm sure इसके easier ways भी होते हैं. For example, people go to Vipassana, they're trying to break those dominoes, कि dominoes है ना, माचिस की तीली, same life चल रही है, आप 3-4 माचिस को पीछे करो तीलियों को, तो you'll be able to understand what's happening. So I'm sure there are very easier ways also to be clear. One could be, again, second could be finding a mentor, which I'm doing these days. क्या break Kensho Satori का इंतजार क्यों करना, कुछ mentors को find कर लो, figure out कर लो. So yeah, these are 2 ways I understand to get clear. Wow. मैं आपकी मेंटरिंग पे भी आऊँगा इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द एपिसोड. मुझे आपसे 2-3 और चीज़ें पूछनी थी विच द लॉजिकल लॉयर इन मी इज वांट्स टू स्टिल अंडरस्टैंड. ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन सब लोग कर सकते हैं या फिर देयर आर सर्टन पीपल जो नहीं कर सकते? मेरा रीज़न क्वेश्चन का है बिकॉज लाइक सक्सेस, लाइक वेल्थ, सब लोग ये बोलते हैं अरे ये लकी हो गया, ये कुछ लोगों के लिए सक्सेस है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड मैनिफेस्टेशन के लिए, इज इट मेंट फॉर एवरीबडी, ऑल 7.8 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, या फिर कुछ सेलेक्ट लोगों के लिए? I think the answer is everyone, because if you are a human, you have the mental faculty inside of you. आपकी एक बायोलॉजी चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, तो आपका दिमाग भी अगर काम कर रहा है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, आपकी मेंटल फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करना, जिससे कि आपको जहाँ जाना है आपका माइंड वो आपके लिए रास्ता बनाते रहे. तो अगर एक इंसान का ब्रेन, मुझे ऐसा लगता है कि सही काम कर रहा है, तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है. द आंसर इज यस, एवरीबडी. तो अब मेंटरिंग की बात करते हैं. इमेजिन करिए कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, लेट्स से रिलेशनशिप में. तो एज अ पर्सनलाइज मैनिफेस्टेशन कोच आप मुझे क्या गाइड या क्या प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोलेंगे सो दैट लेट्स से आई कैन ब्रेक माई ओल्ड सेल्फ और समथिंग इज़ होल्डिंग मी बैक, ताकि कर सके. आई जस्ट वॉन्ट कि अगर हम इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू एक फ्लेवर दिखा सके, व्हाट्स इट लाइक टू बी मेंटेड बाय यू. आई थिंक वॉचिंग दैट इटसेल्फ पीपल विल गेन अ लॉट. श्योर. सो रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो भी मैं मेंटर कर सकती हूँ, बट उसके पहले अगर हम वेल्थ का एग्जांपल लें तो बहुत लोग, फिर हम रिलेशनशिप वाले में आएंगे. ठीक है. सो अगेन वेल्थ, आई हैव टू क्रॉस क्वेश्चन यू बिकॉज आई एम मेंटरिंग यू. प्लीज. सो हाउ आई बिगिन यूजुअली इज दैट ओके. अब मैं नर्वस हो गया हूँ. नहीं, अब क्वेश्चंस तो आपको सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा. I'm going to be exposed. Yeah, you are going to be exposed. So again, Rohan, who you are, like where do you want to go in terms of wealth? ये आपको बताना पड़ेगा. What is your desired reality, which is why? Why means? Why, the X and the Y. So Achha. X will be your current reality and Y will be your desired position. Let's say 100 crores per annum. Again, ये बहुत ही रैंडम ऐसा नंबर नहीं चाहिए होता है. आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आपके लिए बिंदास काम करने के लिए चाहिए होता है
शॉर्ट टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल आप एक जर्नी पे जा रहे हो, आप ट्रेन पे हो, आप प्लेन पे हो, आप ऐसे तो एक आपका स्टेशन होता है राइट, जो कि लॉजिकल है, जो कि आपके दिमाग को दिख रहा है, माइंड को दिख रहा है, या फिर समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेशन। तो सबसे पहली गलती यही होती है मैनिफेस्टेशन की, लोग एक वेग नॉनसेंस सा गोल बनाते हैं। I'm so sorry कि No, no, it's good. Yeah. It should hurt. It should break my it self. hurts usually people. Yeah. Again break से break through होता है Yeah, राइट। break से break तो through क्या होता है। होता है ना कि क्योंकि आपको ना अगेन इसका लॉजिक बताती हूँ कि आप कब कोई भी काम करोगे, सुबह उठ करके आप काम करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वो 100 करोड़ नहीं, वो एक नंबर है, उसके पीछे का वाई होगा आपको। अभी 100 करोड़ की तरफ आप काम करोगे, वो आपको दिख नहीं रहा है, आपको ये भी नहीं पता है, यूजुअली आपका नहीं पता बहुत से लोगों को कि इसका वाई क्या है, मैं क्या करूंगा 100 करोड़ से राइट। तो द वाई हैज टू बी एनर्जेटिक एंड हेंस ब्रिंगिंग इट बैक टू यू। आपका 3 महीने का कोई गोल है रोहन? हाँ, 3 महीने का गोल है कि लेट्स से एक्चुअली that's a good question. That's a good question. या अगेन वो थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होना चाहिए। मीनिंग अगर मैं 10 लाख पे हूँ महीने का मानते हैं, या फिर मैं 1 लाख पे हूँ महीने का, तो मैं करोड़ की बात नहीं करूंगी, मैं उसको 3 टाइम्स 2 टाइम्स कुछ ऐसा लेकर के जाऊंगी एक क्वार्टर पे, सो दैट आई कैन बिलीव एंड सी इट। I've understood. Let's say 10 lakhs per month. श्योर। सो आप नेक्स्ट क्वार्टर तक कंसिस्टेंटली 10 लाख 10 पर lakhs मंथ per तक जाना month. चाहते हो। Correct. ओके, नाउ व्हाट इज अब योर इसमें ये भी बताना जरूरी है रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी? वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रेवेन्यू, क्योंकि आप उस हिसाब से इट्स जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल, कि यार अभी हम लॉजिक पे भी आएंगे, सो मैं लॉजिक और न्यूरो साइंस को एक साथ लेकर के चलूंगी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस So को। profitability I already know. So okay, ठीक है, 10 lakhs per month 10 lakhs per month is profit or revenue? revenue. Okay, revenue. The top line is 10 lakh, which you Yeah. want. So, Rohan, again, what is your X? What is your current reality? Current reality आप 5 lakhs ले लीजिए। ठीक है, ले लेते हैं 5 lakhs और 10 lakhs। अब आपको मुझे बताना है कि ये जो गैप है, जो जिसको आप ब्रिज करना चाहते हो वाया योर मेंटल फैकल्टीज एंड ऑफ कोर्स योर एक्शंस, तो व्हाट आर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस व्हिच योर माइंड कैन लिस्ट राइट नाउ, कि यार ये कमी है, ये दिक्कत है। इंटरनल से शुरू करते हैं। फॉर इंस्टेंस अ डिसबिलीफ, इट्स XYZ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी वर डिस्कसिंग विद आयुष, जो अभी यहाँ नहीं है, एंड अभिषेक, दैट वी वांट टू लॉन्च अ कोर्स फॉर लॉयर्स फॉर द सेम रीजन, बिकॉज आई बिलीव they are getting stuck and they are getting caught in the social conditioning. To break that, we are planning to launch a meta skills course for them. One of my biggest fear is that कोई खरीदेगा ही नहीं खरीदेगा, तो somewhere that holds me back Sure. from monetizing it. या अब आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा कि कैसे आप ब्रेक करते हैं किसी भी फियर को, या फिर जो आप रीजंस खुद को दे रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी या फिर माइंड मैंने ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी ना पूछ मैंने के। ट्रू नाउ बी विद स्टे विद इट। सो आपको, आप क्यों उस चीज़ को नहीं मान रहे हो? बिकॉज आपकी बॉडी और आपके माइंड ने, आपकी बायोलॉजी ने आज तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिल्कुल। सो उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है कि लोग खरीद और नहीं खरीद, और नेगेटिविटी बायस यहाँ पे आ रहा है। 90% आपका माइंड आपको बचाने के लिए, कंफर्ट जोन में रखने के लिए आपको हर एक चीज़ की नेगेटिव मूवी दिखाएगा। सो दीज आर द साइंस। सो कोई चीज़ अगर हमको डरा रही है, द ओनली रीजन इज कि वो हमने आज तक नहीं किया है। बट लेट मी टेल यू, ब्रेन को ना एक मेमोरी और एक विजन के बीच का डिफरेंस नहीं पता चलता। तो यहाँ पे हम आपके सिंगल बिलीव्स को पकड़ते हैं। जैसे आपने एक चीज़ पॉइंट आउट किया, अब इस पे काम करेंगे। ऐसे ही आप 10 बता दोगे, शायद एक्सटर्नल में आप बताओगे कि अगर का मेरे पास नेटवर्क नहीं है, आप बोल सकते हो मेरे पास सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है। दीज आर जस्ट द स्टोरीज यू आर टेलिंग योरसेल्फ। पहले मुझे लगता था कि जब तक यार मैं 1 मिलियन आपने पे मेरे नहीं जाऊंगी, दोनों भी ले लिए, एक्सटर्नल भी ले लिए, एक्सटर्नल यही है ना। यही है। सो आई एम टेलिंग यू, आई वर्क विद पीपल ना, तो यही होता है। द ओनली रीजन इज दैट कि आपके ब्रेन को और आपकी बायोलॉजी को, आपके माइंड को, आपके सोल को, आपके बोन को ये अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और इस वजह से वो उसको बहुत ही एलियन लगता है, और इस वजह से वो आपको रोक रहा है कि सुन यार, तू कंफर्टेबल रह, जो कर रहा है कर। उसको आपको बचा के रखना है। अगेन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो ब्रेन का बेसिक सर्वाइवल, या Okay. एमिगडाला एंड ऑल ऑफ दैट, Amygdala, ठीक है। तो वो पहले तो शिकारियों से बचाता था, अभी वैसा कोई स्टेट से रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट्स और अब हमें बचा रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे इस साइड में रख रहा है ताकि सेफ रहूं मैं। ट्रू। ओके, तो अगेन नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 1 था, ऐसे 10 आ सकते हैं। तो अभी हमको समझना पड़ेगा, हमको अपने ब्रेन के साथ गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पे 2 साइंस आती है। पहला, दैट योर ब्रेन cannot differentiate between a memory, an experience and a vision. So can we replace this? Of course yes, 100%. तो आपने बोला एक कॉपी के एक पेज पे, LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखो कि यार, जैसे आपने क्या बोला था अभी, कि मेरे कोर्स कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। राइट। अब आपको एकदम हैक बताऊं इसका, जो मैं रोज यूज करती हूँ। I can attract people, I can attract team members, I can attract opportunities, everything. It works like wonders because again वो थोड़ा सा spiritual है।
डार्क साइकोलॉजी भी है इसमें ठीक है। तो क्या होता है कि अब आप राइट हैंड साइड पे आपने पकड़ लिया कि ये चीज़ें मैं खुद को बता रहा हूँ और यही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इनफैक्ट ये आपके एजम्पशंस हैं, आपको पता है तथास्तु होगा, वट एवर योर अजम्पशन इज विल बिकम टर्न इनटू रियलिटी। तो एक इंसान, आप खुद सोचिए, एक इंसान जो कि CA IIT IIM करने के बाद लाख 2 लाख नहीं कमा पा रहा, वर्सेस आज की डेट में आप देख रहे हैं 12th फेल होने के बाद भी लोग व्लॉगिंग से, इंस्टाग्राम से करोड़ों छाप रहे हैं। बिल्कुल। तो सत्य तो कुछ है ही नहीं, जो आपने मान लिया वो सच है। देयर इज नथिंग एज रियलिटी इज एन इल्यूजन एंड वी आर इन एन इल्यूजन। अगर आपने मान लिया रोहन कि ये होगा, उसमें तथास्तु हो रहा है। आपने मान लिया कि मुझे ये कोर्स सेल करने में 1 मिलियन फॉलोइंग तक जाना पड़ेगा क्योंकि XYZ, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोल दिया, क्योंकि मेरे मैनेजर, मैंने लोगों को तो सुनो ही मत। मैं जब मैनिफेस्टेशन में आई थी ना, मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने बोला कि अगर तूने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया तो सब बंद करके इधर आ रही है, यू आर क्रैश्ड। मैंने कहा भाई मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, मुझे मत बताओ, इट्स अजम्पशन। तो क्या मैं इस अजम्पशन को चेंज कर सकती हूँ? आप बोलोगे यार अगर का ये तो अजम्पशन है, ये तो मुझे दिख रहा है, इट्स 3D रियलिटी। मैं कह रही हूँ स्टार्ट रिप्लेसिंग दिस, दैट इज वेयर न्यूरोप्लास्टिसिटी कम्स इनटू पिक्चर, मीनिंग द ब्रेन्स एबिलिटी। ब्रेन इज व्हाट? प्लास्टिक। आप उसको कुछ भी बताओ, आप रिपीट करो। तो आपने क्या बोला था कि मेरा कोई कोर्स नहीं खरीदेगा, मेरे पास इनफ फॉलोअर्स नहीं है। ट्रू। अब आप एक सेंटेंस बनाइए जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए, दैट इज वेयर माय पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज यूट्यूब वगैरह पे लोग एक बेसिक एफर्मेशन बता रहे हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई बोल रहा है आई एम अ मनी मैग्नेट, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? ऑलराइट, सो आई एम फाइनली सो हैप्पी। थोड़ा टाइम लगता है मुझे, मैं तुरंत बता रही हूँ रियल टाइम में, कि आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट my courses are now selling via advertisements as a special, that's a hack कि organic content नहीं, followers नहीं भी आप उससे करो। I am finding the best of partners, best of business partners, वो मेरे advertisements को XYZ से को बहुत strongly मेरे word फैला रहे हैं, एंड मैं X अमाउंट पर मंथ के रेवेन्यू टारगेट्स को अगले 3 महीने में कंसिस्टेंटली हिट कर रहा हूँ। अब इसमें आप और नीचे आओ, ये आपका मैक्रो एफर्मेशन हो गया। इसके नीचे आप आओ कि थिंग्स आर शिफ्टिंग रियली फास्ट एंड आई एम फाइंडिंग मेंटर जो कि मेरे को ऐसा कोर्सेज बनवाने में हेल्प कर रहे हैं, द नेटवर्किंग, जो कि हम एडवर्टीजमेंट से XYZ रोआस तक पहुंच रहे हैं। स्टार्ट प्लेइंग विद माइंड, इसको और सिंपल बनाइए। सबसे पहला करिए आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट मैं अगले महीने से 10 लाख रुपए पर मंथ कर रहा हूँ। आपको पता है, ये आप इतनी ज़्यादा बार रिपीट करिए कि ये आपके एग्जिस्टिंग असम्पशंस को ओवर पावर करे। मैंने किया है। We need to slow down because you know your craft so well. I'm absorbing and I'm feeling overwhelmed. Okay. And I don't know, जो कोई भी हमें वॉच कर रहा होगा, guys, this is gold mine जो आपको फ्री में मिल रहा है। Please value it as I want to value my interaction with Agrika. तो आपने बोला सबसे पहले, I just want to break it down for myself. जो आपके LHS पे जो भी आपके नेगेटिव, जैसे मेरे रोहन बत्रा के नेगेटिव बिलीफ्स है वो मैंने लिख दिए। फिर RHS पे आपने जैसे एक मैक्रो लेवल एफर्मेशन बताई, आप उसी का ऑपोजिट कर दो, टू बी ऑपोजिट एंड इन प्रेजेंट टेंस। यस, प्रेजेंट टेंस अगेन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस करो। लोग प्रेजेंट टेंस करते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम फाइनली इट्स शिफ्टिंग। हाँ, एंड व्हेन यू से, आपने सेकंड स्टेप भी बताया, जैसे आपने बोला डीपर जाओ, यू सेड इसको बार बार रिपीट करो, लाइक रेपिटेशन, जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, लाइक अ सेल्फ डायलॉग करूँ, और इज देयर सम प्रोसेस बिहाइंड इट कि कुछ किसी वे में भी कर सकते हैं? ओके, सो इसको भी बताने से पहले इसका लॉजिक समझाती हूँ। हम रेपिटेडली नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एजम्पशन बन रहा है। हमारे रिपीटेड जो सेल्फ चैटर्स चल रहे हैं वो हमारे रिपीटेड थॉट्स हैं, एंड दैट इज बिकमिंग आवर एजम्पशन, दैट इज द ग्राउंड फ्रॉम विच वी आर ऑपरेटिंग। कुछ नया करने के लिए आपको उसको ओवर पावर करना पड़ेगा। तो एक ही तरीका है, नए को रिपीट करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में फेक लगेगा, स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, अनकंफर्टेबल बिकॉज वी आर यूज्ड टू लिविंग अ सर्टेन वे। तो आप जितना नेगेटिव सोचते हो, लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर का 3 बार एफर्मेशन कर ले हो जाएगा, 369 टेक्निक कर ले, ऑल नॉनसेंस। मैं कह रही हूँ कि तुम सुबह से रात तक नेगेटिव सोच रहे हो, एक हेडोनिक ट्रेडमिल में अपने थॉट्स को लेकर जा रहे हो, 60 70 90 टाइम्स सोच रहे होगे, तो 3 बार से कैसे हो जाएगा? टाइम्स सोच रहे हो। You have to figure out your own way of replacing this chatter, period. That's it. अब वो आप देख लो। एंड गोल, अगर मैं आपके वर्ड यूज़ करूँ, आग्रिका, गोल इज़ कि जो बिलीफ इंसर्टेड है माइंड में उसको मैं रिप्लेस कर दूँ इस पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस बिलीफ से, राइट, सो दैट आई स्टार्ट बिलीविंग इन द न्यू रियलिटी। यस, सो अगेन नॉट बिलीव्स तो क्या होते हैं ना, योर थॉट्स क्यूमुलेटिवली बिकम योर बिलीव्स, assumptions.
assumptions / beliefs and from that you operate. कहने का मतलब है अभी आप कोई बड़ा स्टेप पता नहीं क्यों नहीं लोगे. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक टेड टॉक को अप्रोच करना, या फिर मैं अपने लेवल का सोचती हूँ कि यार 1 लाख के एड्स चलाना दिन के, मैं क्यों नहीं करूँगी? बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम अ बिलीफ एंड assumption कि यार ये तो काम नहीं करेगा ना. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे assumptions ही हमारे behaviors को बना रहे हैं, और behavior is your action, is your result. So the point is that कि there is nothing like this skill or this degree or this followership will give you that. It's all assumption. आप यहाँ पे, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप रातों रात बहुत कुछ बड़ा कर लोगे, बट देन एक न्यू आइडेंटिटी को बनने के लिए यही स्टेप होता है. मैंने भी टाइम लगता है इसमें, ये ओवरनाइट नहीं होता. आप ये बोलना चाह रहे हो जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा पॉप वे में बता रहे थे कि ये 3 बार कर लो ठीक हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, वो सब बिल्कुल नॉनसेंस है. ऐसा ही नहीं है, क्योंकि शीश महल रातों रात नहीं बन सकते, बट अगेन उसके लिए 10 साल भी नहीं लगते हैं. अगर एक इंसान ये सोच के बैठा है कि 10 साल लगेंगे मुझे सक्सेसफुल होने में, assumption is equal to reality. अगर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं मैं 1 साल में क्रैक कर लूँगी, assumption will be equal to reality. आपके assumptions ही आपको बिहेव करवा रहे हैं. एक इंसान, अगेन लॉन्ग कट शॉर्ट, एक आदमी जो सोचता है कि मैं ₹1,00,000 पर मंथ की जॉब कर सकता हूँ, उसकी हिम्मत ही नहीं है 5 लाख पे जाने की. वो आप बताओ सर्च करेगा, ट्राई करेगा, बात भी करेगा? नो. assumption को बढ़ाइए, you will see that your mind will start using new physiology. उसके एक्शंस चेंज होने लग जाएंगे, उसकी बातें चेंज लगेंगी. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर थर्मोस्टैट, दैट्स द वर्ड. आपका हर इंसान का एक ब्लूप्रिंट है ऑफ द सेल्फ. वी आर ऑल कैरिंग सम सेल्फ इमेज ऑफ द सेल्फ, अ ब्लूप्रिंट, अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ. उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने का एक ही तरीका है, रेपिटेशन. मैं आपको बताऊं, मैंने लाइफ में कभी CR करोड़ कभी सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं. मुझे कुछ चीज़ें हिंट्स आई, मैं अच्छा काम कर रही थी एक्सेट्रा, मैंने सोचा कि यार लेट्स अट्रैक्टेड, ऑफकोर्स काम करना पड़ेगा. दैट इज़ व्हेन 2022 में मैंने ये रिपीट करा, आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट आई हैव दिस इन माई बैंक अकाउंट. मैंने पागलों की तरह सो करना शुरू करा. कॉफ़ी पीते वक्त जब भी मैं फ्री बैठी हूँ, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिफॉल्ट नेटवर्क मोड, DNM. आप जब आराम से बैठते हो ना, तो आपकी ओल्ड थिंकिंग वापस आने लगती है. मैंने उसको काउंटर करने के लिए जब भी मैं आराम से बैठूं डिफॉल्ट नेटवर्क में, मैं उसको बोलती थी. शायद एक दिन में मैंने कभी कभी 100 बार बोला है, एंड इट हैपेंड. मैं ये नहीं कह रही कि किसी मेरे को इनहेरिटेंस से 1 करोड़ मिल गया या फिर कुछ हो गया. It happened as in like what happened? The amount that I wanted, that I wrote, that was beyond my thinking, वो मुझे मेरे अकाउंट में 6 महीने में आ गई. बट आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी ने क्रेडिट कर दिया. मेरी थिंकिंग चेंज होने लग गई, मेरी वाइब चेंज होने लग गई, मेरे पास वैसी पार्टनरशिप्स आने लग गई, and as a result आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया. Yes, because I worked on it. तो वर्क तो करना पड़ता है. इट्स जस्ट दैट कि आप 9 to 5 करके लाख कमा रहे हो वर्सेस आप 9 to 5 करके करोड़ कमा रहे हो. वो आपकी वाइब डिसाइड करती है, क्योंकि वाइब से ही आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे. आज आप जो कर रहे हैं, आपके पास जो लोग हैं, वो आपकी वाइब्रेशन से ही आए ना. और वाइब्रेशंस कैसे हुआ? इट्स योर थिंकिंग. सो समथिंग व्हिच इज हियर, कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में, कोई भी चीज़ 2 बार क्रिएट होती है. एक बार आपकी इमेजिनेशन में, दूसरा रियलिटी में. तो आपको जो करना है, आपको जिस चीज़ का विजन आ रहा है, पहली बात तो वो आपका विजन नहीं है, वो ऊपर वाले का विजन है, ब्रह्मांड है. दैट्स पर्पस. और अगर आपको किसी भी चीज़ का विजन आ रहा है, वो आपको सोने नहीं दे रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि यू हैव इट इन यू, यू कैन डू इट. तो ये तो अब हम थोड़ा स्पिरिचुअल साइड भी 1 सेकंड के लिए चले गए. तो नहीं, आपने बात बहुत अच्छी बोली कि ऊपर से जो भी विजन आ रही है वो आपकी नहीं है, उस सोर्स की है जो आपके अंदर आ रही है, एंड आपको उस पर काम करना है. बट अगर मैं वापस ग्राउंड रियलिटी पे बात करूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हमारे पास ये विजन्स आती हैं, लोग विजन्स और गोल्स में शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हेन दे से कि मुझे भी 50 लाख से ईयर कमाने, जैसे मैंने एक नंबर बोल दिया, तो क्या वो उनकी विजन से निकल रहा है या उनके गोल या सोशल कंडीशन से निकल रहा है? ये हम कैसे पता लगाएं? अगेन इसके मल्टीपल आंसर्स हैं. पहली बात तो मैंने ये रियलाइज़ किया है रोहन कि मनी ना बहुत खोखली चीज़ है. एक वक्त आएगा, अगर इनिशियली हम सभी ना मनी से ही सक्सेस को डिफाइन करते हैं, जो कि गलत है. हमको अपने आप को प्रूव करना है तो हम मनी ही दिखाते हैं, एंड हेंस लोग मनी की तरफ ही जा रहे हैं. एक वक्त था व्हेन आई वांटेड व्हाटएवर, आई हैड रीच्ड दैट प्लेस, बट देन आई वाज द अनहैप्पीएस्ट. बिकॉज जो पैसा होता है ना, वो बहुत खोखला होता है इफ़ इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर पर्पस. Because एक point आएगा जब you'll be having the turnover, you'll be having the revenue, but then you will feel that void within. Emptiness. Yes, emptiness within, because universe wants you to just not have money for yourself, rather along with that money be of some help to others also. तो again second thing कि लोगों को ये जो आ रहा है out of FOMO आ रहा है, ये आपने सही बोला, because हमारी again social script, we want to be seen. और आज के ज़माने में
पिछले कई टाइम से आपका स्टेटस आपका मनी ही डिसाइड कर रहा है कि आपके पास कितना खाता है, आप क्या कर रहे हो. तो एक हमको बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते हमें कि हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट एक बिल्कुल. बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि आप पर्पस को फ्रंट एंड पे रखिए, फ्रंट सीट पे पर्पस को रखिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पर्पस आप पैसे को भी लेकर के आइए. सो पीपल शुड फर्स्ट फाइंड देमसेल्व्स कि मुझे क्या करना है. आपकी जो भी क्राफ्ट है, आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही है, उसको आप फ्रंट फुट पे खेलिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप मैनिफेस्ट करिए इससे मैं पैसे बना रहा हूँ. सो दिस विल सेव यू नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि मेरे साथ हुआ. इनिशियली as a part of social script, I was chasing money. I would just write money. But then I realized कि it is very void feeling. It is a void feeling. You are doing something जिसमें आप खुश नहीं हो, फिर आपको वो करने का भी मन नहीं करेगा. But then you'll be stuck कि अरे यार इससे तो पैसे आ रहे थे, अब मैं क्या करूँ. So ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपना पर्पस उससे अटैच करो. सेकेंडरी, मनी इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट शुड बी योर स्किल, योर क्राफ्ट, योर हाउ कैन यू हेल्प पीपल. और उसको ऐसा मोनेटाइज करो कि उससे पैसे भी आते रहे. So yeah. वाओ. सो तो मेरा टेक अवे है, विजन वही है जिसमें आपका भी भला हो रहा है और किसी और का भी. ट्रू. सोशल कंडीशनिंग गोल वही है जिसमें आपको पैसे शायद फिर भी आ रहे हो, सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस पैरामीटर फिर भी मीट हो रहे हो, बट शायद आपको अंदर वॉइड या एम्प्टी फीलिंग हो रही है. या